तो बच्चों बीच का वीडियो थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा मुझे बिकॉज द फोन वाज कमिंग रिपीटेडली, सो वी आर रीस्टार्टिंग इट अगेन. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट tan x, राइट. सो tan x का रेंज क्या है बच्चों? सो व्हेन यू सी द ग्राफ यू सी range means output, right? So this is tan. So here you are getting all the values of real number. Okay, so all the outputs are real numbers. तो आप लिखोगे बच्चों range is equal to, आप सीधा लिख सकते हो R. So range is R. Is it clear? So now we will discuss about, so tan is clear. So next is cot. Okay, now tell me what is the formula of cot? So cot you will write cos x by sin x. Is it clear? So sin, when sin is becoming 0, in the case of sin n pi equal to 0. So in this input sin is becoming 0, so cot is going to become infinity. Is it clear? Not defined. So what will be the domain? Tell me. So domain will be the set of all x such that you can put any real number except x equal to n pi. You should not put x equal to n pi where n belongs to z. So this is domain, my dear students. Now what could be range? Range means output. आपको क्या क्या मिल सकता है? So when you see the graph, this is the graph of, you know, cot x. You see? So if I zoom a little, you see first quadrant, which is 0 to pi by 2, the value is decreasing from infinity to 0, and from pi by 2 to pi again it is decreasing, from pi to 3 pi by 2 again it is decreasing to 0, from 3 pi by 2 to 2 pi, which is fourth quadrant, it is again decreasing to minus infinity. So that means in the case of cot x the trend is decreasing, whereas in the case of tan x the trend was increasing. So if you see here, you see cot x decreases from infinity to 0 and again decreases from 0 to minus infinity, again decreases from infinity to 0 and decreases from 0 to minus infinity. Is it clear? So the trend of cot x is continuously decreasing, infinity to 0, फिर 0 से infinity, and again decreasing from infinity to 0 and 0 to minus infinity. The trend of cot tan is always increasing. ठीक है? And this is the graph. So kindly draw this graph. Okay? And this is the domain. And what could be range? Range literally you will get any value. So range is real number. So you can get any real number. Is it clear? तो बच्चों हमने सब डिस्कस कर लिया, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट का डोमेन, रेंज, ग्राफ एंड in which quadrant it is increasing and decreasing. So this table is very important. Okay, this you will get in the textbook page number 59, and the graphs are very important. ठीक है बच्चों, and at the same time the domain and range is very very important. Okay, so next I am getting into some questions. Before that, one important thing I want to discuss over here is that from the graph, if you see, the sign repeats itself after every 2 pi. So from 0 to 2 pi you have one wave, and the second wave starts again 2 pi to 4 pi. So that means here you can say that 0 से लेके 2 pi तक बच्चों एक साइकिल आता है, फिर नेक्स्ट साइकिल अगेन 2 pi से 4 pi, द विड्थ इज
2 पाई। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हर 2 पाई के बाद आपका जो साइन और कॉस फंक्शन है वो रिपीट होता है। इज इट क्लियर? एंड द सेम थिंग यू कैन गेट इन द टर्म्स ऑफ सेक एंड कोसेक ऑल्सो। ओके, सो सेक देखिए आपका एक साइकिल 0 से लेके π/2 से, फिर π/2 से पाई, वापस पाई से 3π/2, ओके, देन फ्रॉम 3π/2 टू पाई, करेक्ट। तो यहाँ बच्चों एक साइकिल आपका 0 से लेके 2 पाई तक है। इज इट क्लियर? देखिए जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है 0 से π/2, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर अगेन ये ऊपर से नीचे आ रहा है। 2 पाई के बाद बच्चों ये जो साइकिल है फिर से रिपीट होगा। सो इन सेक एंड कोसेक ऑल्सो द साइकिल रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 पाई। लेकिन अब टैन में देखोगे, टैन में हर पाई के बाद वो साइकिल रिपीट होता है। कैसे पाई के बाद? सी दिस इज 0 टू इन्फिनिटी एंड नेक्स्ट -∞ टू 0, करेक्ट। तो वन साइकिल इज ओवर 0 टू पाई, अगेन 0 से इन्फिनिटी, -∞ से 0, सेकेंड साइकिल। सो इन द केस ऑफ टैन एंड कॉट द साइकिल रिपीट्स आफ्टर एवरी पाई, आफ्टर एवरी पाई। इसका क्या मतलब है ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करेक्ट। तो आप ये बोल सकते हो कौन कौन सा है, एक तो साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, यू कैन से रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई। इसका मतलब ये है बच्चों कि साइन 2 पाई प्लस थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा। क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो ये है। एंड कॉस 2 पाई प्लस थीटा को भी आप लिख सकते हो कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। सिमिलरली कोसेक 2 पाई थीटा को भी आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, एंड सेक 2 पाई प्लस थीटा को भी आप लिख सकते हो सेक थीटा विदाउट एनी चेंज। सो नॉट ओनली 2 पाई, द करेक्ट वर्जन कुड बी साइन n पाई, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन x, cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। नेक्स्ट इज cosec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, sec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा। इज इट क्लियर? सी मतलब ये है, ध्यान से देखिए, आपको और मैं समझाता हूँ। चलिए पहले मैं tan का लिख लेता हूँ। तो आप लिख सकते हो tan थीटा कॉमा cot थीटा repeats after every pi, after every pi। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि tan पाई प्लस थीटा को आप लिख सकते हो tan थीटा, एंड cot पाई प्लस थीटा को आप लिख सकते हो cot थीटा। इज इट क्लियर? इससे और एक लॉजिक सेट हो रहा है, tan n पाई प्लस थीटा को आप लिख सकते हो tan थीटा, एंड cot n पाई प्लस थीटा को लिख सकते हो cot थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए ये कैसे काम आता है देखिए। सपोज आपको बोलेगा इवैल्यूएट या तो फाइंड
जैसे मान लीजिए आपको बोल रहा है कि आप निकालिए साइन 16 पाई क्या है। 16 पाई तो बच्चों आपको मालूम ही है 0 है, बिकॉज 16 पाई इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2n पाई एंड 2n पाई विल बी ऑलवेज n पाई। ओके, साइन n पाई इज 0 यू नो वेर n इज 16 ओवर हियर। तो ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन बच्चों, ऐसे आ सकता है साइन 17 पाई। ठीक है, तो साइन 17 पाई को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो 16 पाई प्लस पाई। ओके, नाउ साइन 2n पाई आई टोल्ड यू बिफोर, दैट इज, देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कोसेक 2n पाई, सो लाइक दैट। सो साइन 16 plus pi equal to sin pi. Is it clear? Similarly, if I say cos 17 pi, तो बच्चों आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो cos 16 pi plus pi equal to cos pi। 16 पाई ही लिखना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे बच्चों ऐसा भी लिख सकते हो cos, सपोज मैं लिखता हूँ 14 पाई, देन इट विल बी 3 पाई, बिकॉज 14 पाई प्लस 3 पाई 17 पाई, सो दिस बिकम cos 3 पाई। इज इट क्लियर? cos 3 पाई यू कैन राइट 2 पाई प्लस पाई एंड दिस बिकम cos पाई। ओके, एंड व्हाट इज cos पाई? cos पाई इज -1। व्हाट इज sin पाई? इट इज 0। तो ऐसे करके बच्चों आप रेडियन को स्केल डाउन कर सकते हो। सपोज एनीवेयर इट इज रिटन 99 पाई, आप इसको क्या लिख सकते हो 98 पाई प्लस पाई। नेक्स्ट स्टेप में यू विल गेट पाई, बिकॉज 98 पाई रिजेंबल्स complete cycles and this is the extra one. Okay, but in the case of tan becomes more easier again, because suppose I write tan suppose I write tan that is 6 4 pi by 3. I am writing tan 4 pi by 3, correct? So 4 pi by 3 is actually 120, because pi by 3 is, you know, no, this is pi by 6 we will write. Okay, so I am writing neatly. So this you can take tan 4 pi by 6. This is pi by 6 is 60, 30 into 4 is 120. So this is actually 120. तो 120 को ब्रेक करके कैसे लिखेंगे बच्चों 90 plus 30 लिख सकते हैं, right? So 90 is, no, I want to write 90 plus 30. So this is pi is 180. No, this will not work. This will not work like that. So let me take tan 7 pi by 6. Okay, pi by 6 is 30, 30 into 7 is 210. Okay, so this अगर मैं तोड़ के लिखूं बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूँ pi plus pi by 6. Okay, क्योंकि देखिए ये आता है 210, so this is 180, this is 30, 180 plus 30 is 210. अब आपको पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो pi by 6. tan 30 is 1 by root 3. So like that you can reduce the radian if you know the basics. So in the case of sine, cos, cosec and sec you have to use 2n pi, and in the case of tan and cot you can use n pi, and you can reduce the radian measure. Is it clear? अब देखिए टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करते हैं. So the first question is sine 765. Okay, so sine 765 I can write sine, this is 765 को आप डिवाइड करो 360 से बच्चों, किससे
360 से 180 से भी कर सकते हो, 360 से करिए. So 360 से when I divide this, I am going to get 2s are 720. So this is 45 degree. So I can write 765 as 360 into 2 plus 45. So I can write 360 into 2 plus 45 degree, right? So 360 is what? A cycle, 2 pi, and this when multiplied by 2 it becomes 4 pi. Okay, so 4 pi plus 45 becomes sin 45 degree. Sin 45 degree is 1 by root 2. यानी बच्चों ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन में आपको जनरेट करना है 2n pi in radian and 360 into n in the case of degree. So this you can wind up and you can write only this. क्योंकि बच्चों मैं आपको और एक लॉजिकल वे में सिखाता हूँ. देखिए अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एक कंप्लीट रोटेशन लेने के बाद मैं यहाँ पहुँचूँगा, दिस इज 360, और एक रोटेशन लेने के बाद मैं यहाँ पहुँचूँगा विच इज 720, मैं और 45 डिग्री जाऊँगा तो मैं यहाँ पहुँचूँगा. इज इट क्लियर? सो आई एम लैंडिंग दिस पोजिशन आफ्टर टेकिंग 2 complete anti-clockwise rotation and 145 degree rotation, right? Suppose I am forgetting the rotations. How much this angle is all about? This is 45 degree. So directly I can use 45 degree rather than using the bigger angle. तो यानी बच्चों हर बिगर एंगल का एक स्मॉलर वर्जन होता है, आपको वही स्मॉलर वर्जन को यहाँ पे लिखना है. करेक्ट? तो साइन कॉस कोसेक सेक में आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हो 2n पाई या तो 360 इंटू एन का. tan और cot में बच्चों आप पाई का लॉजिक यूज़ कर सकते हो. तो ये आ गया साइन. नेक्स्ट देखते हैं कोसेक. सो नेक्स्ट इज कोसेक माइनस 1410. फिलहाल ये एंगल से मत घबराइए बच्चों, आप एंगल को बाहर ला सकते हो, एंगल बाहर आ जाता है. माइनस कोसेक हर केस में बाहर नहीं आता है, मैं डिस्कस करूंगा किस केस में बाहर आता है. 1410. अब ये देखते हैं 1410 में 360 कितनी बार आता है. ओके बच्चों, 360 इज इट कमिंग 3s are 0, 18, 1, 3 3s are 9, 10. लेट मी पुट 4, 0, 6 4s are 24 का 4 का 2, 1440 आता है बच्चों. आगे चला जाता है, बढ़ जाता है ये. करेक्ट? सो आई कैन यूज, तो आप माइनस भी यूज़ कर सकते हो बट बेटर यूज पॉजिटिविटी. सो दिस आई एम राइटिंग 3s are, so I will be getting 1080. This is 3s are, right? Subtraction 0, 3 and this is 330. Is it clear? So here you can write minus cosec 360 into 3 plus 330. Okay, so this is going to become minus cosec 330, right? Now this you can write minus cosec 360 minus 30. Okay, 360 minus 30. Now 360 minus 30 will be cosec 30 only, but this is in the fourth quadrant, and in the fourth quadrant sign is negative, so one more negative will come. So this is plus cosec 30, and this you can write 1 by sin 30. 1 by sin 30 is 1 by 2. When you take the reciprocal you will be getting 2, so the value is 2. Okay, so this is one of the technique. Next question देखते हैं बच्चों. This is question number 8. कुछ डाउट आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, कॉल करके क्लियर कर लीजिए. 19 pi by 3. Now see carefully. So this let me change into, mixed fraction tan. So for that I will doing
19 pi 3. So I am writing 6 pi. So this will be 18 pi 1. Okay. So this I can write as mixed fraction 6 pi pi by 3. 6 pi pi by 3. Clear? Now this mixed fraction I can break 6 pi plus pi by 3. In the case of tan, this 6 pi you can eliminate. You can write pi by 3. What is the formula which inspires you to do this? Tan n pi plus theta equal to tan theta, right? And tan pi by 3 means it is tan 60. Tan 60 means it is root 3. Is it clear? So my dear students, this is how you have to wind up. You have to convert bigger angle into smaller angle. Now this is कुछ बात बच्चों मैं आपको सम के बाद बताऊंगा जो मुझे एक्चुअली पहले बताना चाहिए था. तो वो ये है कि in the case of sine, you know, minus will go out, so you are going to get, but in the case of, you know, there is one formula, sine minus theta is equal to माइनस साइन थीटा. ये एक फॉर्मूला है बच्चों, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. इज इट क्लियर? लेकिन कॉस में ऐसा नहीं बाहर जाता है, याद रखिए. कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. करेक्ट? सो माइनस साइन, this becomes 11 pi by 3. Now change into what? Mixed fraction. How to change? 11 pi, this is 3 pi 9 pi minus 2 pi. तो you can write, but 3 pi से काम नहीं चलेगा बच्चों. आपको चाहिए था, you know, 360 डिग्री. सो ऐसा करते हैं, बिकॉज आई वॉन्टेड हियर 4 पाई 6 पाई. तो 11 पाई बाई 3 क्या है पहले कैलकुलेट करते हैं बच्चों. पाई बाई 3 है 60. 60 इंटू 11 में करूँगा तो 660 आ रहा है ये. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 360 प्लस 300. सही है ना? 360 बाई 300 को अगर रेडियन में आप लिखना है तो लिख सकते हो. रेडियन में आप लिख सकते हो 2 पाई, इट इज 360 डिग्री. ओके, एंड दिस 30 डिग्री इज 10 पाई बाई 6. नाउ माइनस साइन, दिस विल गो अवे. यू आर गेटिंग 10 पाई बाई 6. इज इट क्लियर? नाउ this you can write, this is actually 300. दिमाग में रखिए, 300 को लिख सकते हो 360 minus 60. So 2 pi minus pi by 3. Pi by 3 is 60, right? So again this becomes sine pi by 3. But this comes in fourth quadrant. In fourth quadrant sine is negative. So here you will get negative. So you are getting plus sine pi by 3. Pi by 3 is, you know, 60. Sin 60 is root 3 by 2. तो ऐसे करके बच्चों आप इसको कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज cot माइनस 15 पाई बाई 4 है. ओके, सो cot में बच्चों माइनस बाहर चला जाता है, तो यू विल बी गेटिंग माइनस cot 15 पाई बाई 4. So minus cot, this you can write, अगर आप इसको लिखोगे बच्चों तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 15 पाई को मैं 4 से डिवाइड करूँगा. 3 पाई बाई 12 पाई, सो दिस इज 3 पाई. सो आई कैन राइट 3 पाई बाई 4 माइनस कॉट. इसको तोड़ के बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस कॉट. दिस आई कैन राइट 3 पाई बाई 4 because this will go away, right? You have one formula. What is that formula?
बताइए क्या फॉर्मूला है, कॉट n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. सो दिस इज एक्चुअली माइनस कॉट पाई बाई 4 इज 45, 45 इंटू 3 इज 135. तो आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉट पाई माइनस पाई बाई 4, because pi is 180, pi by 4 is 45, 180 minus 45 is 135. Okay, so minus cot pi means it will not change, you will be getting. थोड़ा बच्चों मैं आपको इसके बाद एक टॉपिक बताऊंगा जिससे आपको और समझ में अच्छा से आएगा. तो whenever you are having pi, okay, it will not change. So you can write cot pi by 4, but this lands in which quadrant? Second quadrant. In second quadrant cot is negative, so you will be getting two negatives, negative negative positive, you will be getting cot pi by 4. आंसर इज 1. ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप जो है कर सकते हो. अब ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो मुझे आपको बताना था अभी मैं बता रहा हूँ आपको. वो ये है, फर्स्ट बच्चों ये डोमेन और रेंज देखिए अच्छा से लिखा हुआ है, आप जो है इसको लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन द माइंड इज दिस फॉर्मूलाज, दैट इज कॉस, यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, तो कॉस 90 माइनस x इज साइन x, sin 90 minus x is cos x, tan 90 minus x is cot x, cot 90 minus x is tan x, sec 90 minus x is cosec x, cosec 90 minus x is sec x. तो यानी बच्चों जब भी 90 माइनस आता है ना, तो आपको साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में चेंज करना है. याद रखिए बच्चों, याद. एंड दिस पाई बाई 2 माइनस एक्स कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. याद रखिए 90 माइनस थीटा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. कैसे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? देखिए आपको मालूम है दिस इज द एंटायर सिनेरियो. सो दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2. तो पाई बाई 2 से पीछे कदम उठाएंगे ना, माइनस करेंगे तो वेर यू आर लैंडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट. पाई बाई 2 से प्लस करेंगे तो यू आर लैंडिंग सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है बच्चों, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे इसका एड्रेस क्या हो गया बच्चों, पाई बाई 2 प्लस थीटा. अब ये है पाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे पीछे जाएंगे बच्चों, और पाई प्लस थीटा करेंगे तो आगे जाएंगे बच्चों. और ये जो पड़ा है दिस इज 3 पाई बाई 2. ठीक है, आप पीछे आओगे तो माइनस, आगे जाओगे तो प्लस. तो पीछे क्या लिखोगे, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करोगे, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे. ये प्लस ये माइनस. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस. और यहाँ के लिए बच्चों क्या करोगे, दिस इज 2 पाई, दिस इज 0 ऑल्सो, दिस इज 2 पाई ऑल्सो. तो अगर आप पीछे आना है आपको 2 पाई माइनस थीटा करोगे, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है 2 पाई प्लस थीटा करोगे. सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज यू शुड एक्वायर. ठीक है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा 2 लोकेशन है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट का कौन सा लोकेशन है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, एंड दिस इज पाई माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट का कौन सा लोकेशन है बच्चों, पाई से प्लस थीटा आगे, या तो 3 पाई बाई 2 से पीछे. बस आगे पीछे चलने की बात है, और क्या है. 3 पाई बाई 2 से प्लस थीटा करोगे आगे, 2 पाई माइनस थीटा करोगे पीछे. तो दीज आर द लोकेशंस. ठीक है बच्चों, अब देखिए जब भी आपको पाई बाई 2 जैसा मिल रहा है, यानी अगर आपको ऐसा मिल रहा है 2 प्लस 1 पाई बाई 2, आपको करना है, क्या करना है, चेंज. ओके, तो 2 n प्लस 1 पाई बाई 2 में कौन कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों, एक तो आ रहा है पाई बाई 2, दूसरा 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट 5 पाई बाई 2, फिर नेक्स्ट
7 pi by 2, so on. So whenever you are getting angles like this, you have to change. And how the change will work? The change will work like this. Sin x से आपका आ जाता है cos x और cos x से sin x. नेक्स्ट tan x से आपका आ जाता है cot x से tan x, और आपका sec x से आ जाता है cosec x, और cosec x से sec x. कुछ तो गड़बड़ लग रहा है बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन में, मेरे ख्याल से सही है. tan का cot का tan, sec का, ये कन्वर्जन है. एंड इफ यू आर गेटिंग एंगल लाइक दिस n pi, then you have to say no change y, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन. ये सारे केस हैं बच्चों, आपको चेंज नहीं करना है. नो चेंज. साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा. अब देखिए उसके बाद आपको आगे और बढ़ना पड़ेगा. तो बच्चों नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लस में. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लस में बच्चों क्या समझ में आया आपको, बताइए कि देखिए पाई बाई 2 आ रहा है. मैंने बताया था पाई बाई 2 आने से क्या होता है, चेंज. तो देखिए कॉस बन गया साइन, साइन बन गया कॉस, tan बन गया कॉट, कॉट बन गया tan, सेक बन गया कोसेक, कोसेक बन गया सेक. एकदम क्लियर है बच्चों. उसके बाद देखिए और एक चीज़ यहाँ पे देखिए बच्चों, नेगेटिव आ रहा है. देखिए वाई नेगेटिव, बिकॉज पाई बाई 2 प्लस एक्स रिजेंबल सेकेंड क्वाड्रेंट. तो ये जो बच्चों रिजेंबल कर रहा है किसको, सेकेंड क्वाड्रेंट को. और सेकेंड क्वाड्रेंट आपको मालूम है कि साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है. अब यहाँ पे देखिए कॉस है, तो ये cos के वजह से यहाँ पे आएगा नेगेटिव, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, सो आई एम पुटिंग नेगेटिव ओवर हियर. तो सिमिलरली हियर साइन इज बिकमिंग पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट द साइन इज पॉजिटिव, सो हियर इट इज पॉजिटिव. अब देखिए tan बन जाता है cot, सही है ना बच्चों. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है तो नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव है तो नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है तो नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ पॉजिटिव आया है. पॉइंट टू बी नोटेड है. तो ये भी याद कर लीजिएगा बच्चों. इसके नीचे में देखिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है. तो पाई आ जाने से चेंज नहीं होगा बच्चों. कॉस का कॉस, साइन का साइन, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec. क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से ना. बस साइन चेंज करना है. पाई माइनस एक्स रिजेंबल्स सेकेंड क्वाड्रेंट. मैंने फिगर में बताया था ना, पाई माइनस एक्स रिजेंबल्स सेकेंड क्वाड्रेंट. देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ये देखिए पाई माइनस थीटा रिजेंबल्स सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है बच्चों, बाकी सब नेगेटिव है. तो देखिए कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, sec नेगेटिव, cosec पॉजिटिव. बिकॉज साइन एंड cosec आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. क्लियर है बच्चों. अब देख लीजिए यहाँ पे पाई आ रहा है, चेंज नहीं होगा. लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों. थर्ड में tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. तो cos नेगेटिव, साइन नेगेटिव, tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, sec नेगेटिव, cosec नेगेटिव. सिंपल ना, कोई डाउट नहीं है. चेंज नहीं हो रहा. देखिए sec का sec ही है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लुक हियर, यू कैन सी बोथ हियर. 2 पाई चेंज नहीं होगा बच्चों, सब कुछ सेम है. 2 पाई माइनस एक्स रिजेंबल्स थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस एक्स रिजेंबल्स फोर्थ क्वाड्रेंट. In third quadrant tan is positive, tan and cot, so cos negative, sin negative, tan positive, cot. एक मिनट, this is third quadrant, all silver T. तो tan तो I am very sorry बच्चों, 2 पाई माइनस एक्स है. दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी. तो फोर्थ में बच्चों आपका आता है cos and sec is पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. तो cos पॉजिटिव, साइन नेगेटिव,
tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, sec पॉजिटिव, cosec नेगेटिव। तो यानी वी आर डिस्कसिंग फोर्थ क्वाड्रेंट नाउ, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec इज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बच्चों नेगेटिव डाल देना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए 3π/2 आ गया। मैंने बताया था 3π/2 में चेंज होता है, तो cos बन जाएगी sin, sin बन जाएगी cos, और 3π/2 प्लस में cos बन जाएगा sin, sin बन जाएगा cos। tan का नहीं दिया है, tan होता है तो cot बन जाएगा बच्चों, cot बन जाएगा tan। और ये 270 - x ये जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों, ये आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ मैंने गलती कर दिया, देखिए यहाँ पे 2π + x इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 2π से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, राइट। ये देखिए फिगर में कभी कभी कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। ये देखिए ये 2π है, तो 2π से प्लस करोगे तो यू आर रीचिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π माइनस करोगे तो यू आर रीचिंग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो in that case, so this will be the fourth quadrant, this will be the fourth quadrant, this will be the first quadrant। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है बच्चों, तो ये सारा पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर्मूला लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड cos इज नेगेटिव, cos का नेगेटिव, sin का भी नेगेटिव, and this is fourth quadrant, cos is positive, sin is negative, and you have to change it बच्चों, because 3π/2 आ जाता है। तो मल्टीपल ऑफ π/2 में, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में इट विल चेंज। तो मैं एक वर्ड लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, शायद आपको हेल्प हो जाए। तो इसके ऊपर में मैं इसको लिख सकता हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोले बच्चों, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, दिस आर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया चेंज का। नो चेंज है बच्चों, सीधा आप लिख सकते हो nπ। ओके, तो nπ यानी आप इसको सिंपल वर्ड बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ π। इट्स वेरी सिंपल। तो मल्टीपल ऑफ π में बच्चों चेंज नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ तक आप बढ़िया से लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। इसके आगे हम जो है और फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये जो है मेन बॉक्स है बच्चों, ये बॉक्स बना दीजिएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन क्रीम इन्फॉर्मेशन है बच्चों। देखिए sin -x माइनस sin x, cos -x cos x, tan -x माइनस tan x। फिर π/2 -x में चेंज हो रहा है बच्चों, यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ नो चेंज, नो चेंज, चेंज, चेंज। ओके, मैं क्वाड्रेंट लिख दूं। सो दिस इज -x इज एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मैं नहीं लिखता हूँ बच्चों, इसको लिखता हूँ π/2 - x। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ये आप लिख दीजिएगा लिखने के टाइम में। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आइडियली आप देखोगे ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए, बिकॉज इट इज कमिंग व्हाट, नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे से आ रहा है नेगेटिव, राइट। अब देखिए इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज व्हाट, ऑल आर नेगेटिव एक्सेप्ट कॉस। तो कॉस के लिए पॉजिटिव आ गया बच्चों, बाकी वैल्यू के लिए देखिए नेगेटिव आ जाता है। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये बना दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे फिर हम लोग और भी ढेर सारा फॉर्मूलास पढ़ेंगे, जिससे आप और स्मार्ट बन जाओगे। दिस इज RS अग्रवाल। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, डाउट भी होगा पूरा। और होमवर्क ध्यान से देखिए क्या क्या करना है। होमवर्क आप एक्सरसाइज 2A का देखिए, ये 8th क्वेश्चन कर दीजिएगा ऑल, 9th क्वेश्चन ऑल, 9th ऑल, 8th ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बाकी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5th क्वेश्चन भी कर लीजिए, 6th भी कर लीजिए, 7th भी कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अच्छा से है, एक बार कर लोगे हमेशा के लिए एकदम सेट हो जाएगा। एंड और बच्चों ये देखिए
do this question also. Example third, all questions. Example third, all questions. Is it clear? Any doubt? उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल फोर्थ, ऑल क्वेश्चंस. देखिए एग्जाम्पल 4 ऑल क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल 5 ऑल क्वेश्चंस. दिस विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. ओके, लॉजिक क्लियर है तो सब क्लियर हो जाएगा. ओके बच्चों, तो मैं यही बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ कि किसी भी एंगल को आप 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा में चेंज करिए. अगर वो डिग्री में है तो किस में है? डिग्री में है. अगर वो रेडियन में है तो बच्चों उसको 2n पाई प्लस थीटा में चेंज करिए. अगर वो किस में है तो रेडियन में है तो. इज इट क्लियर बच्चों? बिकॉज इन दिस केस द साइकिल रिपीट्स. तो आप ये चीज को एलिमिनेट कर सकते हो इवन कॉस में भी, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. ओके तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. होप आपको समझ में आया होगा. बहुत सारा डाउट भी होगा तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू आस्क डाउट्स. ओके, एंड जितना मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों सारे फॉर्मूला को ब्लैक पेन में लिख दीजिए बड़े सुंदर से. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.